شریف. ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ابھی تقریباً نبی معظم نے کیوں ارشاد فرمایا مجھے اس کی تفصیل میں نہیں کرنا. بس آج روزے عاشوراء یہ جو ہم جلوس نکال رہے ہیں, یہ جو جلوس برآمد کر رہے ہیں, یہ جو ہم سڑکوں پہ اتر کے احتجاج کر رہے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلوس جیتنے والے کا نکلتا ہے, ہارنے والے کا نہیں نکلتا. سلامت رہے. جلوس جیتنے والے کا نکلتا ہے, ہارنے والے کا نہیں نکلتا. امام علی مقام نے, امام مظلوم کربلا نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے. امام مظلوم کربلا نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے. پیغام دیا ہے کہ انقلاب کیسے لایا جاتا ہے. جو یزید تب کے خلافت پر بیٹھا ہوا تھا وہ حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا, حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا, وہ رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا. امام مظلوم کربلا جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے بلکہ کردار کی جنگ تھی. ماؤں بہنوں کو ساتھ لیا, بیٹیوں کو ساتھ لیا, بچوں کو ساتھ لیا. کربلا کے میدان میں عظیم ترین قربانی پیش کی ہے جس سے انسانیت پامال ہونے سے بچ گئی. دنیا یہ سے سمجھ رہی تھی کہ ہم نے ان کے گلے پہ خنجر چلا دیا تو یہ مر جائیں گے, یہ مٹ جائیں گے. لیکن عزیزان ایمان وہ بھول گئے کہ موت شخص کو آتی ہے, شخصیت کو نہیں آتی. موت انسانیت کی محافظت کی ہے, انسانیت کو بچایا ہے, ایک ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ مردہ ضمیر باشعور ہو گئے, مردہ ضمیر زندہ ہو گئے. اور صرف ہم ہی نہیں, آقا حسین کا تذکرہ کر کے بلکہ آقا عبداللہ کا ذکر تو ہندو بھی کرتے ہیں, سنی بھی کرتے ہیں, بریلوی مسلک کے بھی کرتے ہیں. جتنے بھی انسانیت کو پسند کرتے ہیں, جتنے بھی باضمیر ہیں, وہ امام حسین کو پسند کرتے ہیں. راجنا پتا جناب مہاتما گاندھی نے جب امام حسین کی شہادت کو دیکھا, امام حسین کی شہادت کو پڑھا, کتاب کربلا کو پڑھا, تو انہوں نے دیکھا کہ امام مظلوم کربلا نے کس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے سے ضمیر انسانیت کو بیدار کیا ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے ایک بیان میں راجپتا جناب مہاتما گاندھی کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ انگریزوں نے چاہا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں غلاموں کی زنجیریں باندھ دی جائے, ہندوستانیوں کو پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے تاکہ یہ غلامی کی زنجیروں میں بندھے رہے. انگریز آئے, انگریزوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے تاکہ ہم آپ کو ایک حصہ دیں گے جس میں آپ حکومت کریں, جس میں آپ اقتدار سنبھالیں, آپ اپنے لوگوں کو ساتھ میں رکھیں اور ہمیں حکومت کرنے دیں. لیکن مہاتما گاندھی کے دلوں میں کربلا تھی, مہاتما گاندھی کے دل میں فرش آزادی مجلسیں تھی, مہاتما گاندھی کے دل میں کربلا کا مقصد تھا. انہوں نے دیکھا کہ جب حسین یہ تو تنہا ہو کر لاکھوں سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی عزم حسینی لے کر حسین کے راستے پر چل کر قربانی پیش کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ
अब उन्होंने अपने लश्कर को तैयार करना शुरू किया इनकलाब पैदा करने के लिए। अजीज़ान ईमान वो कहते हैं कि कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है कि जो करबला की जमीन को छू के ना आता हो। हर इनकलाब करबला की जमीन से उठता है। एक मर्तबा उन्होंने आजादी की जंग में जब कुर्बानी पेश की, नौजवान शहीद हुए, बुजुर्ग शहीद हुए, हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से महात्मा गांधी ने आजादी दिला दी। जब आजादी दिला दी, आजाद भारत हो गया, तो एक मर्तबा महात्मा गांधी ने अपने बयान में कहा था कि अगर मुझे हुसैन के वफादार जैसे 72 साथी मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को मात्र 24 घंटों में आजादी दिला देता। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबने इमाम हुसैन के रास्ते पर कामयाबी सीखी है। गुरु नानक है कि जो अपने शागिर्दों को रोज़े आशूरा है जिस तरह से आप सड़कों पर निकले हुए हैं, इमाम हुसैन की सवारी हवार आपके पास में है, सुलझना आपकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, शबीए ताबूत आप बरामद कर रहे हैं इमाम बारगाहों से। रोज़े आशूरा का जुलूस सड़कों पर उतरता है और इमाम हुसैन की जीत का ऐलान करता है। इसी तरह से सिखों के रहनुमा जनाब गुरु नानक अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे कि इतने में ताज़िया इमाम हुसैन का नजर आया। गुरु नानक अपनी जगह से उठे और इमाम हुसैन के ताज़िए का बोसा लिया, एहतराम किया, नंगे पांव चलते जुलूस में शरीक हुए और अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जाओ तुम लोग भी हुसैन की ज़ियारत करो। एक शागिर्द कहता है कि ये तो मुसलमानों का रहनुमा है हुसैन, ये तो मुसलमानों का लीडर है हुसैन, हम तो सिख हैं, हम इनकी इताअत और फरमाबरदारी क्यों करें। तो एक मर्तबा गुरु नानक कहते हैं कि ये सिर्फ एक का लीडर नहीं है बल्कि हर कौम का लीडर है। मैं कहता हूँ जाओ इनकी ज़ियारत करो। जब उसने कहा कि नहीं हमारा मजहब और है, हमारा मसलक और है, इनका मसलक और है, तो एक मर्तबा गुरु नानक कहते हैं तो फिर किसकी मानेगा। कहा आपकी बात मानूंगा, आपकी मानूंगा, आपके रास्ते पर चलूंगा, मैं आपको अपना आइडियल, आपको अपना लीडर, आपको अपना रहनुमा समझता हूँ। तो एक मर्तबा गुरु नानक ने कहा तो ठीक है जाओ अपनी बहन से शादी कर लो, जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। एक मर्तबा वो शागिर्द कहता है उस्ताद क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी बहन से शादी कर ले, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। बस गुरु नानक मुस्कुराए और कहा इसी ज़मीर को तो हुसैन कहते हैं। या हुसैन 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 लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। उसी ज़मीर को जो हुसैन कहते हैं, जो हमें बुराई से रोकता है, जो हमें रिश्तों के एहतराम को बताता है, वही ज़मीर तो हुसैन है। इमाम मज़लूम करबला ने यही कुर्बानी देने के लिए करबला के मैदान में आए हैं। अरे इमाम मज़लूम करबला ने आपको उस वक्त बहुत याद किया जब 6 महीने के बच्चे को लेके मैदान करबला में आए। तो आने के बाद कहते हैं ऐ शियो, अरे काश तुम करबला के मैदान में होते तो तुम देखते कि तुम्हारा आका, तुम्हारा मौला, तुम्हारा हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी कैसे मांग रहा है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान ईमान, एक मर्तबा इमाम हुसैन अली असगर को अपनी गोद में लेके आए हैं मक्तल में। अब जो मक्तल में पहुंचे हैं, 6 महीने का बच्चा है, जरा तसव्वुर तो करें 6 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 6 महीने के बच्चे का गला कितना बड़ा होता है। एक मर्तबा मैदान में आए हैं और आने के बाद पानी तलब कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते कि तुम्हारा हुसैन किस तरह से असगर के लिए पानी मांग रहा था। अल्लाह अकबर।
अरे 6 महीने के बच्चे को मैदान करबला में हुसैन ने निकाल दिया। अरे हुसैन ने जमीन करबला पर अली असगर को निकाल दिया। करबला की जमीन इतनी गर्म है कि अगर दाना डाल दिया जाए तो भूल जाए। शिद्दत धूप की इतनी है कि अगर जमीन पे दाना डाल दिया जाए तो वो भूल जाए। अब अजीज़ान ईमान तारीख कहती है कि इमाम ने असगर से कहा, मेरे लाल तू हुज्जत खुदा का फर्जंद है, इनके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तू अपनी हुज्जत इन जालिमों पर तबाह कर दे। तारीख कहती है कि जनाब अली असगर का प्यास के आलम में ऐसी शिद्दत की प्यास में ऐसा आलम था कि जैसे कोई मछली पानी से निकलने के बाद अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, तो ऐसे ही जनाब अली असगर कभी मुंह को खोलते थे तो कभी बंद करते थे। एक मतलब नन्ही सी जबान बाहर निकाली, सोते हुए होठों पर पपड़ियां जमी हुई थी, अपनी जबान को होठों पे फेराना शुरू किया। हुसैन ने अब जो अली असगर को जलती हुई जमीन से उठाया है, अली असगर को जलती हुई जमीन से उठाया है, तो अली असगर की पुष्ट पे छाले पड़े हुए थे। अली असगर की पुष्ट पे छाले, अल्लाह अकबर। अली हुसैन ने असद को अपने आगोश में लिया, उर्मिला मलऊन ने तीरे से शोभा लगाया, तीरे से शोभा का निशाना बनाया। तीरे से शोभा कौन सा तीर है? ये वो तीर है कि जो बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता है। अरे करबला में इंसानियत मुर्दा हो चुकी थी और जानवर इंसान बन चुका था कि जहाँ लोग खून के प्यासे हुसैन के थे, वहाँ जानवर यानी जो रहवा था वो हुसैन की नुसरत कर रहा था। अजीज़ान ईमान करबला के मैदान में उर्मिला मलऊन ने तीर का शोभा निकाला है, जो वो तीर है कि जो बड़े जानवर के शिकार के लिए होता है। अब आप तसव्वुर करें कि कहाँ बड़ा तीर और कहाँ छोटा सा असगर का गला। अल्लाह अकबर, कहाँ छोटा सा असगर का गला। हाँ अजीज़ान ईमान, एक मरतबा तीर चला, तीर आकर तीर आकर अली असगर के गले में लगा। अब तारीख कहती है कि मिनल उज़्न, एक कान से दूसरे कान तक ये तीर होता हुआ निकल गया, इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। बच्चा बाप के हाथों में मुंतकिल हुआ। पहले बच्चा मुस्कुराया, उसके बाद बाजू में इमाम को जब देखा तो आंखों में आंसू आ गए। अजब नहीं, असगर कह रहे हो, अरे अम्मा मुझे माफ करना, तीर बहुत बड़ा था, मेरा गला बहुत छोटा। असगर के लहू को हुसैन ने चुन्नू में लिया। अब जो चुन्नू में लिया है, एक मरतबा असगर के अपने चेहरे पे वाला असगर का जनाजा लिए हुए हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, कभी कहते हैं इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी कहते हैं रज़ा पे कज़ा ही वो तस्लीम अलैहि। अरे करे खैमा में आए हैं, करे खैमा में आए हैं, चेहरे पे इमाम हुसैन के असगर का लहू लगा हुआ है। एक मरतबा चेहरा घुमा के खड़े हो गए और आगे के बाद कहते हैं, रबाब असगर को आगे ले जाओ, रबाब असगर को ले जाओ। इतना सुनना था कि सकीना करे खैमा में आई, देखा बाबा के चेहरे पे असगर का लहू है। अरे चीख बुलंद की, सकीना गिरी। अरे सकीना की चीख सुन के रबाब करे खैमा में आई, असगर का लाशा देगा आवाज दी। अभी सुनो करीमुल्लाह, ऐ मेरे लाल, क्या मेरे जैसे बच्चे भी सिवा दिए जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।